Sri Sri Radha Parthasarathi Temple is not merely a place of worship. It is a sanctified celestial node where the energies of the cosmos, culture, and devotion converge in the perfect harmony. Built under spiritually significant planetary alignments, the temple radiates the sattvic vibration of divine, offering seekers a rare alignment with higher realms. Every stone, every chant, and every architectural nuance seems guided by an unseen cosmic script woven through the divine will of Lord Krishna. For those yearning for inner tranquility, cultural wisdom, or an intimate union with the Supreme, the temple serves as sacred mandala, an earthly representation of spiritual world. Come, step into this astrologically charged aura and allow the timeless presence of Sri Sri Radha Parthasarathi to align your heart with the divine rhythm of universe and illuminate your spiritual journey. Perched atop the serene Hare Krishna hills in east of Kailash, New Delhi, the Sri Sri Radha Parthasarathi Temple, popularly known as ISKCON Delhi, stands as a luminous beacon of devotion, culture, and architectural brilliance. Inaugurated on 5th of April 1998 by Sri Atal Bihari Vajpayee alongside Sahib Singh Verma and Sushma Swaraj. Since then, the temple has become a sanctuary of spiritual seekers and cultural enthusiasts. Temple's foundation is cosmically designed with the divine vision of His Divine Grace, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, whose birth and mission seemed designed by celestial forces. As the founder of the International Society of Krishna Consciousness, Srila Prabhupada appeared on the earth under an auspicious planetary configuration, destined to become spiritual luminary in the age of Kali Yuga. Guided by Siddhantic wisdom of his Guru and propelled by his own realization, he undertook a sacred yatra beyond Bharat's borders. Crossing oceans during a pivotal astrological transit, he sowed the seeds of Krishna consciousness in the West, fulfilling a prophecy and realigning a spiritual destiny of countless souls. This majestic temple in Delhi stands not merely as the structure of stone and sanctity, but as a karmic convergence point, a tangible manifestation of divine will, planetary grace, and timeless rhythm of Sanatan Dharma awakened once more. हरे कृष्ण। आज हम आए हुए हैं श्री श्री राधा पार्थसारथी टेम्पल स्कॉन और मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ श्री ब्रजेंद्र नंद दास, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ स्कॉन नेशनल कम्युनिकेशन। प्रणाम सर। हमें स्कॉन टेम्पल के निर्माण के बारे में कुछ बताइए। हरे कृष्णा। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 1965 में न्यूयॉर्क गए थे कार्गो शिप के द्वारा, और वहाँ पहुँच करके प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क सिटी में एक टॉम्किन स्क्वायर पार्क है, वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का हरिनाम कीर्तन आरंभ किया। और उसके बाद जो वहाँ हिप्पीज थे, यंग लड़के, वो सब वहाँ इकट्ठे होने लगे। फिर प्रभुपाद जी ने गीता का प्रवचन दे करके हरे कृष्ण महामंत्र से उनको नचा करके अब भगवान का प्रसाद खिला करके वहीं से भक्ति आरंभ हो गई। और इस समय पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन के 1000 से ज़्यादा केंद्र हैं पूरे विश्व में। और इस्कॉन दिल्ली का ये जो मंदिर है श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, श्री प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए साउथ दिल्ली में एक बड़ा मंदिर होना चाहिए।
और 10 मंदिर दिल्ली एनसीआर में होने चाहिए छोटे छोटे। ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी। तो उन्होंने अपने शिष्य परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को आदेश दिया, आज्ञा दी, निर्देश दिया कि एक कार्य आपको करना है। तो परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के अथक प्रयास से और प्रभुपाद जी की इच्छा और आदेश का उन्होंने पालन करते हुए साउथ दिल्ली में ए राधा पार्थसारथी मंदिर का निर्माण कार्य 1991 में आरंभ किया और 7 साल के अंदर ये भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया। और 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उनके कर कमलों के द्वारा इस मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया। और उस समय श्रीमती सुषमा स्वराज जी सूचना प्रसारण मंत्री थी, तेजेंद्र खन्ना जी गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और साव सिंह वर्मा जी चीफ मिनिस्टर थे। तो ये सब के सहयोग से ये मंदिर का उद्घाटन हुआ। और आज देखिए दुनिया की जो सबसे बड़ी गीता है वो गीता हमारी इस्कॉन के वैदिक 100 में रखा गया है। और उसको रखने के लिए स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आकर के अपने कर कमलों के द्वारा वो गीता यहाँ रखी है। विश्व की सबसे बड़ी गीता मैं इस दिल्ली मंदिर के वैदिक 100 में रखा गया है। राधा पार्थसारथी बहुत ही पावरफुल डीटी हैं और जो भी इनका दर्शन करता है उनको पूरी आशीर्वाद भी मिलता है। और जो इच्छा उनके पास रखते हैं ठाकुर जी के पास, इच्छा लोग पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं, जब मंदिर बन रहा था तो ये लग रहा था कि बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन अब मंदिर छोटा पड़ता है। इतनी पब्लिक आ जाती है कि हाल वगैरह छोटे पड़ जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद है। इस्कॉन जो है पूरे विश्व में भगवद गीता यथारूप के माध्यम से प्रचार कर रहा है। और ये जो वैदिक ज्ञान का प्रचार गीता के माध्यम से हो रहा है, तो दुनिया के हर भाषा में एक भगवद गीता यथारूप उपलब्ध है। यहाँ तक कि चाइना में भी, जापानीज में, हर भाषा में इस्कॉन के द्वारा गीता उपलब्ध की गई है। हर देश में उसी की भाषा में गीता का प्रचार इस्कॉन के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में गीता बांटी जा चुकी है। श्री प्रभुपाद चाहते थे कि हर हाथ में और हर घर में भगवद गीता यथारूप होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का ये जो नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक कलयुग का पतित पावन मंत्र है। ये महामंत्र का जप करने से हर व्यक्ति अपने आप को सुधार सकता है और प्रसन्न रह सकता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि यू वांट टू बी हैप्पी, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, जो सबसे सरल तरीका है प्रसन्न रहने का इस कलयुग का। क्योंकि इस कलयुग में एक पतित पावन मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको चैतन्य महाप्रभु गोलोक से लेकर के आए थे। इसीलिए इसके बारे में बताया गया है कि गोलोक केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, यह नाम संकीर्तन वैकुंठ लोक से आया हुआ है। और शास्त्रों में बताया गया है कि कलिकालीन नाम रूप कृष्ण अवतार परम भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग में अवतार लिए थे, कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतार लिए हैं। इसे नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी इसी हर नाम के बल पर आज पूरे दुनिया में इतनी बड़ी संस्था खोल दी, शिव हर नाम के बल पर। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले रामनवमी का उत्सव मनाया गया। आप जानते हैं कि भगवान का नाम पत्थर पे लिख देते थे और वो तैरने लगता था। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है कि द्वापर युग में भगवान के नाम से समुद्र पर पत्थर तैरा करके इतना बड़ा पुल तैयार कर दिया था 100 योजन। तो भगवान के नाम बड़ी शक्ति है। हनुमान जी भगवान का नाम लेकर के 100 योजन
समुद्र एक छलांग पार कर ले। हमारे प्रभुपाद जी ने इसी हरिनाम के बल पर 7 समुद्र पार करके इस्कॉन की स्थापना कर दी, जो आज पूरे विश्व में प्रचार प्रसार चल रहा है। तो शुद्ध भक्त जो भी इच्छा करता है भगवान पूरी करते हैं। बस भगवान पर हमारे हृदय में समर्पण की भावना होनी चाहिए कि भगवान गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मामनव, अपना मन मेरे में लगाओ। समस्या है कि मानव सब जगह मन लगाता है, लेकिन जो आनंद के आगार हैं उनके प्रति मन नहीं लगाता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपना मन मेरे में लगाओ, कि भगवान में जब मन लगाएंगे तो आनंद के आगार हैं, आनंद के भंडार हैं भगवान कृष्ण। तो उनका नाम लेने से निश्चित रूप से आपको आनंद मिलेगा। श्री प्रभुपाद जी ने इसीलिए ये हरिनाम लेकर के विश्व में भ्रमण किया। आज पूरा वर्ल्ड के लोग जो है भगवान का नाम ले करके हरिनाम का कीर्तन करके और आनंद रहे। जहाँ देखो हमारे विदेशी भक्त नाच रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप कहीं वृंदावन जाने का मौका मिले या सीधा मायापुर जाने दे, जहाँ हजारों की संख्या में पूरे वर्ल्ड के भक्त लोग रहते हैं और नाचते हैं गाते हैं, तो इस हरिनाम में बड़ी शक्ति है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाइए अपने जीवन में, भगवद गीता को पढ़िए, श्लोकों को समझिए और अपने जीवन में उतारिए। आपका ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण। Renowned architect Achyut Kanvinde, a stalwart of modern Indian architecture, undertook the temple's design as a pro bono endeavor in 1993. Kanvinde masterfully combined traditional Hindu temple architecture with contemporary design elements, creating a structure that resonates with both spiritual ambience and architectural innovance. The temple complex, one of the India's largest, encompasses numerous facilities, including a 375-seat auditorium for cultural and religious events. At the heart of the temple lies the Sanctum Sanctorum, a spiritually potent core aligned with the divine cosmic energies, an axis mundi where the heavens meet the earth. Within this sacred space resides the adorned deities of Sri Radha Paratha Sarathi, Sri Sita, Ram, Lakshman and Hanuman, Sri Gaura Nitai, the golden avatar of Kali Yuga. Each deity is not merely an image but a living manifestation of higher celestial archetypes, meticulously adorned to channel divine vibrations and astrologically harmonics. Together they form a sacred triad, a constellation of spiritual potency around which the temple's energetic orbit revolves. For devotees, this sanctum is more than a shrine. It is a portal through which karmic cycles are purified, consciousness elevated, and destinies realigned under the benevolent gaze of the stars.